कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 13, वचन संख्या 11। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। 1 Corinthians chapter 13 verse 11. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became an adult, I put an end to childish ways. The word of the Lord. Thanks be to God. चलिए हम इस बाइबल वचन पे मनन चिंतन करते रहें और हम एक वीडियो देखें साथ ही साथ। Giacomo, smettila, vieni giù e dammi una mano. Tuo fratello se ne vuole andare in Svezia. Tu stai sempre a fare sti quadri. Abbiamo bisogno che aiuti. Devi aiutare. Basta, non voglio sentire niente. T'aspetto. Capito? Quindi quando lui ha scelto di fare l'artistico e adesso fa l'Accademia delle Belle Arti, pittura, effettivamente questa era una cosa che quando io e mia moglie l'abbiamo preso per la prima volta in mano non avremmo mai immaginato. Tutto è stato diverso da quello che ci eravamo immaginato. Oh, le cose stanno andando bene. Su che? Qui, ho l'attività. Senti una cosa, io a novembre mi laureo alla triennale, però dopo non voglio fare la magistrale qui in Italia. Ma l'Italia niente? L'Italia no. Vabbè, non me l'aspettavo. Noi avevamo immaginato, soprattutto poi mia moglie, che il mio primo figlio facesse o giurisprudenza, o il medico, o l'avvocato, questi lavori tradizionali, o commercialista, mia moglie è commercialista, uno studio avviato. E quindi quando lui ci ha detto che voleva fare l'interprete, abbiamo faticato a capire la sua scelta. Noi in genere facciamo un progetto, no? Un progetto sui figli, diventa anche forse naturale. Nel momento in cui c'è stata la frattura tra quello che tu avevi immaginato e quello che è successo, lì un genitore fatica. A me piace imparare cose nuove e anche qualcosa che non ho mai imparato. Per questo ho pensato che lingue potesse essere uno sbocco sul mondo. Quando ho detto ai miei genitori di voler studiare pittura, mia madre all'inizio è stata un po' in disaccordo perché credeva insieme alla mia professoressa che io fossi più portato a studiare architettura, ma attualmente credo che la mia vera passione sia la pittura, qualcosa di molto più libero dell'architettura. Io e Giacomo siamo molto uniti e quindi mi fa molto piacere che stia seguendo ciò che lui ama. Nel momento in cui i ragazzi hanno individuato la direzione verso la quale vogliono andare, forse vale la pena allora di considerare di trovare la forza, di trovare il coraggio di mettere da parte quelle che sono le nostre aspettative, quello che noi abbiamo immaginato per loro e lasciarli liberi di camminare e di volare con le proprie ali. Bueno, vosotros deseáis cosas buenas para vuestros hijos. Dejadlos en libertad. No amáis a vuestros hijos y no amáis su libertad. De modo que debéis ver con gusto que vayan por el camino que ellos libremente escojan con la gracia de Dios. Allora, Giuseppe ha scelto finalmente la laurea magistrale che vuole fare. Sì. Indovina dove? Fuori Roma. Svezia. Non sono Svezia. Svezia. Senti, quell'altro, il pittore non aiuta per niente.
non mi aiuta per niente. Dice che mi deve aiutare così, ma non mi aiuta per niente. E se C'ha sempre- Giuseppe va via, se lui non ti aiuta, che No, facciamo? no, infatti mi deve aiutare. Per noi è un bel problema perché non aiuta più la famiglia. Sta lontano e costoso, comunque costoso, però per lui, per il percorso che lui ha scelto, è una cosa coerente. Allora, alla fine che facciamo? L'aiutiamo o non l'aiutiamo? Io direi di aiutarli. Ok, allora dobbiamo parlare con lui, con loro. Il regalo più grande che possiamo fare ai nostri figli è quello di regalargli la libertà, la possibilità di scoprire se stessi e coltivare se stessi nel loro mondo e nel loro modo di realizzarsi. Allora Giacomo, tuo fratello ha scelto di fare la sua magistrale in Svezia, come tu sai. Ok, già me ne aveva parlato. Perfetto. Adesso il problema è questo, che qualcuno dovrà fare i turni che faceva lui. Ma li farò io. Grazie. Allora veramente puoi andare. Sì, ti fa veramente, se no... Sì, e non devi trascurare comunque l'università. Chiaro, Perché anche quei corsi, tuo fratello ci è riuscito, lo farai anche tu. Va bene? En las familias hay una cosa común, ¿eh? Un parecido, no sé qué de la sangre, pero después libertad. Libertad personal y responsabilidad personal. No, penso che alla fine sempre sono stato molto libero e a casa siamo stati molto liberi. Hanno insegnato sempre l'importanza del pensiero e del ragionamento, questa importanza del pensare liberamente anche alla propria vita, al proprio lavoro. Diciamo che all'inizio un po' tutti i genitori vorrebbero rivedere se stessi nel proprio figlio, però dopo qualche tempo capiscono che devono lasciare liberi i figli e che hanno diverse personalità e diverse passioni rispetto a loro. Ti vedo felice quando fai questo, effettivamente vedo che nei tuoi occhi c'è una luce diversa quando ti occupi di queste cose. Questo è quello che noi tutti vogliamo come genitori nei confronti dei nostri figli, noi quello che vogliamo è vederli felici. Ho imparato che era giusto che scegliesse nostro figlio il suo futuro e non noi. Riuscire ad instaurare un dialogo con i figli che permette il confronto e la conoscenza del figlio. E mi ha aiutato anche a rispettare poi le scelte. आइए हमने जो अभी वीडियो देखा और जो वचन सुना हम कुछ क्षण हम मौन रहते हुए हम मनन चिंतन करेंगे। आइए हम आज के वचन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। आज के इस थीम के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। बहुत ही सुंदर वचन उन्होंने हमें दिया है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र में जो लिखा हुआ है कि हम जब बच्चे थे तो हम बच्चों की तरह बोलते थे, सोचते थे और समझते थे, किंतु जब हम सयाने हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें वो बचकानी आदत छोड़नी होती है। और आज के वीडियो में भी हम वही देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो जिम्मेदारी लेना, बचकानी आदतों को छोड़ना, वो पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं उन्हें वो रिस्पॉन्सिबल बनने में सहायता प्रदान करते हैं। तो आज का थीम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, या आता कहाँ से है? अगर हम आज के वीडियो में गौर करेंगे, वीडियो में दोनों बच्चों की मम्मी कहती है, when you first get to know your children, each child, जब आप अपने बच्चों को जानना शुरू करते हैं, मैं यही विश्वास करती हूँ और आप लोगों के सामने भी यही रखना चाहती हूँ कि जब हम जानना शुरू करते हैं तभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला स्टेप शुरू होता है। और ये दूसरों को जानने समझने से पहले कहीं ना कहीं खुद से ही आरंभ होता है। खुद को जानना, खुद को जानना और खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को स्वीकारना। जब हम छोटे होते हैं तो कहीं ना कहीं
हमारा दिन बहुत अच्छा जा रहा होता है, हमें सब कुछ मिल रहा होता है, हम इवन हमारे छोटे टाइम के जीवन में हमारे दिल में जो भी आता था हम उसे कहीं ना कहीं सीधे तरीके से रख भी देते थे। जब हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो हम खुद के कुछ कुछ वीकनेसेस को, कुछ कुछ नेगेटिविटीज को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और तब हम उस वीकनेसेस और नेगेटिविटीज से कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम जानते हैं तो हमें खुद के बारे में बहुत खराब भी लगने लगता है कि हम ऐसे हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम में वीकनेसेस भी रहेगा, साथ ही हम खूबियां से भी भरे रहेंगे, हमें ढेर सारे पॉजिटिविटीज भी रहेंगे। तो सिर्फ पॉजिटिव वाला सेल्फ वो हम नहीं है, बल्कि हम दोनों का कॉम्बिनेशन है। हमें नेगेटिविटीज, हमें कमजोरियां भी हैं। तो जब हम खुद को जानते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं, तभी ही हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ पहला कदम उठा पाते हैं। क्योंकि जब हम जानते हैं, खुद को जानते हैं, पहचानते हैं, आप खुद को जानते हैं, खुद को पहचानते हैं, तो हम खुद को कहीं ना कहीं फ्री कर पाते हैं। जब खुद को स्वीकारते हैं तो हमें कोई हिचकिचाहट नहीं रहता है खुद की चीजों को लेके, या हमें कुछ छुपाना नहीं पड़ता है। और हमें जब कुछ भी चीज छुपाना नहीं पड़ता है तो हम वो फ्रीडम फील कर पाते हैं, तो हम फ्री फील कर पाते हैं। और तभी आप खुद अगर अपने जीवन में देखेंगे, जब भी हम कुछ गलती कर दें या कुछ छुपाते हैं, तो हम कितना खुद को एक केज में, एक बंदी की तरह रखा हुआ फील होता है। अंदर से आपको खुद को फील होता होगा वो घुटन, आपको फ्रीडम बिल्कुल भी फील नहीं होता होगा। तो सबसे पहला चीज है, जब हम खुद को जानते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं, तो हम फ्री फील कर पाते हैं। और जब हम फ्री फील कर पाते हैं, जब हम खुद तो जानते हैं, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के और नजदीक जाते हैं। क्योंकि हम जब सारी चीजों को परख लेते हैं, जान लेते हैं, और जब हम सब चीजों को भली भांति समझते हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे खुद के अंदर आता है, और हम तब एक्चुअली एक बच्चे की तरह बिहेव करना, बचकानी आदतों को, चाइल्डिश वेज को छोड़ना शुरू करते हैं। हमारी जो भी जब एक बच्चा होता है, कहीं ना कहीं जब वो कुछ गलत करता है तो वो डरा हुआ रहता है, और कभी कभी उसे वो सच को सामने रखने के लिए भी दिक्कत होता है, और वो छुपाने की कोशिश करता है, और बार बार उसे पोक करने के बाद, बार बार उसे पुश करने के बाद ही वो बोलता है। तो ये कहीं ना कहीं वो चाइल्डिश वेज की तरह है। तो हमें ये बचकानी आदतें, जब हम बड़े होते हैं, हम जानते हैं, हम समझते हैं, जब रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो चाइल्डिश तरीकों को छोड़ना होता है। और हम कभी कभी ये हम खुद के अंदर में ऐसे बहुत सारे बचकानी आदतों को देखेंगे, और उन सबों को, उन चाइल्डिश वेज को हमें छोड़ना होता है। और उन चाइल्डिश वेज को हमें क्यों छोड़ना होता है? क्योंकि जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, खुद को जानना, दूसरों को जानना, और नेक्स्ट है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गॉड को जानना, गॉड को जानने की राह में आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये सारे चाइल्डिश चीजों को छोड़ना होता है। जब हम गॉड को जानने की राह में आगे बढ़ते हैं, तो हम उनका काफी सारा कॉलिंग्स हमें मिलता है। हम दिन पर दिन कहीं ना कहीं खुद में महसूस कर पाते हो कि आज प्रभु मुझसे यह कह रहा है करने को, आज प्रभु मुझसे कह रहा है कि अपने परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करो, आज प्रभु मुझसे कह रहा है कि मेरे सामने जो गलत हो रहा है उससे रोकने को। तो ये सारे कॉलिंग्स को हम फॉलो कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी बचकानी आदतों को नहीं छोड़ते हैं, तो हम शायद इन सब चीजों में भी अड़े रहें कि नहीं प्रभु, मैं तो नहीं कर सकती, नहीं प्रभु, मेरे में तो ताकत नहीं है। जबकि उस समय में हम शायद विश्वास के साथ खड़े हो पाएंगे कि हाँ प्रभु, आप मेरे साथ है, तो मैं जरूर कर सकती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ आप मुझे सहायता प्रदान करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ सबसे पहला स्टेप होता है जानना, और उस जानने में कहीं ना कहीं खुद को जानना, यह जानना कि मैं और बच्ची नहीं रही हूँ,
तो मुझे उस बचकानी आदतों को छोड़ना है और परमेश्वर को जानने में आगे बढ़ना। और ये सारे प्रोसेस को कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए संत अन्ना और संत जोआकिम अपने जीवन में आगे बढ़ पाए थे। और अगर हम भी इसी तरीके से इसी प्रोसेस में हम जब आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके तरह बन पाएंगे। और जैसा कि ये वचन में लिखा हुआ है, संत पौल हमसे कहते हैं कि हमें मैच्योर बनना है। जब हम सयाने हो जाते हैं, समझने लायक हो जाते हैं, इंग्लिश में जिस तरीके से लिखा हुआ है, When I became an adult, I put an end to childish ways। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि I need to leave, मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ते रहना है, बल्कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि I need to put an end, मुझे छोड़ना होगा, बिकॉज मेरे में वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ आ चुका है। और संत अन्ना और संत जोआकिम इसी पथ पे आगे बढ़ते हुए, खुद को इसी तरीके से बढ़ाते हुए, खुद को जानना, ईश्वर को जानना, इस राह में आगे बढ़ाते हुए वे कहीं ना कहीं अपने पेरेंटहुड के समय, पेरेंट बनने से पहले, जब वे मैरिड कपल थे और उन्हें कोई संतान नहीं था, तब भी वे आगे बढ़ पाए थे, ईश्वर पर विश्वास रख पाए थे। और माता मरिया उनके जीवन में जब आई, उनकी बेटी माता मरिया जब उनके जीवन में जब आई, तो तभी भी वे आगे बढ़ते हुए चले थे। और तभी वे कहीं ना कहीं दूत जो उनके जीवन में आते हैं, जो आज आमिया हमें बता रही थी कि उनके जीवन में दूत आते हैं और संदेश देते हैं, तो अगर वे बचकाने आदतों में रहते हैं तो वो दूत को भी बोल देते कहाँ से आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो वहां पे भी नहीं समझने वाला चीज उनका रहता। लेकिन क्योंकि वे ईश्वर को जानना शुरू किए थे, उनमें समझ बढ़ना शुरू हुआ था, वे बचकानी आदतों को छोड़ चुके थे, वे उस बुलाहट को भी जान पर विश्वास रख के आगे बढ़ पाए। और माता मरिया उनके जीवन में आई, और माता मरिया के द्वारा यीशु आए, जिन्होंने आज हमें यह जीवन दिया, और आज हम एक साथ यहाँ मिल पा रहे हैं, उनके वचनों पर मनन चिंतन कर पा रहे हैं और उस अनंत जीवन के लिए खुद को तैयार कर पा रहे हैं। तो संत अन्ना और संत जोआकिम के उस फैसले के वजह से, उन डिसीजंस, उनके लाइफ में चेंजेस के वजह से, वो समझदारी के वजह से, वो जिम्मेदारी लेने के वजह से, आज वे कहीं ना कहीं एक पवित्र पीढ़ी, एक होली जनरेशन बना पाए थे, और हम भी उस जनरेशन के भागीदारी बन रहे हैं। और आज जब हम इस वचन को मानेंगे तो हम भी एक होली जनरेशन बना पाएंगे, क्योंकि आप सभी को ही जानते हैं कि पेरेंटिंग कोई एक खेल नहीं है, कोई एक चाइल्ड्स प्ले नहीं है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सामर्थ्य से भरे, प्रज्ञा से परिपूर्ण करे, वे हमें सहायता प्रदान करे कि हम खुद को और प्रभु परमेश्वर को, उनको हम जानने पाए। साथ ही जानने के बाद हम फ्री होने पाए और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी को अपने जीवन में लेने पाए। और जब भी प्रभु हमें आप गाइड करते हैं कि हमें अपनी बचकानी आदतों को छोड़ना है और हमें एक मैच्योर पर्सन की तरह, एक अडल्ट की तरह अपने डिसीजंस लेना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, प्रभु उस राह में हम चलने पाए, हमें सहायता प्रदान कर प्रभु। और हम संत अन्ना और संत जोआकिम के पद चरणों पर चलते हुए हम उनकी तरह एक पवित्र परिवार गठन करने पाए, एक पवित्र पीढ़ी बनाने पाए। प्रभु सहायता प्रदान कर, इसके लिए हम निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।